Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. Welcome back to your EVS class, student. Today date is 10 April 2021 and I am teaching you chapter number 1 and name of the chapter is family. Let's do recapitulation what we have done in our previous video. So in previous video, student, I explained you how family is formed. A group of people who are united by birth, marriage or adoption form a family. So in this manner family is formed. या तो आपका उस फैमिली में आपकी बर्थ होगी तो आप उस फैमिली में होगे, ठीक है. आफ्टर मैरिज योर मदर ज्वाइन योर फादर फैमिली, और इफ देर इज नो चाइल्ड in the family, in that case we adopt a child and that is known as adoption. So in this manner family is formed. After that, student, I explained you different types of families. So when I explain you different types of family, the family and how you draw a family tree with the help of your parent, that already I have given you as a homework, that you draw a family tree with the help of your parent. And when we are talking about the family, it is divided into two types of family, joint and nuclear. Joint is a large family. Member of joint family are grandparents, parents and children, and another joint family maybe the members are grandparents, your parents and children, and maybe your uncle, aunt and their children. So after that I explain you what do you mean by cousins, your uncle, aunt, children. So what is the relationship between you and them? That is your brother and sister, but they are cousin, brother and sister, because their mother are not same, they are not siblings. So they are not siblings. Siblings I have already explained you. Sibling means mother is same. For example, if there are 2 or 3 children in the family and their mother is same, that is known as siblings. But in case your uncle and aunt mother is not same, so they are your brother and sister, but they are cousin sister and cousin brother. Okay. After that I explain you what is a nuclear family. Okay. A nuclear family is a small family and member of the nuclear family are mother, father and children. This is a nuclear family. And after that, the topic which I explained you is what are maternal relatives and what are paternal relatives. Okay. Before your marriage, your mother also having a family before marriage. So relatives of your mother family, that are known as maternal relatives. Is it clear? Maternal relatives. Okay. So maternal relatives, they are from mother family. Is it clear? Mother family, they are from mother family. And if it is paternal relatives, paternal, paternal, paternal
रिलेटिव्स, रिलेटिव्स मीन्स होता है बेटा आपके जो रिश्तेदार होते हैं, ठीक है, रिलेटिव्स. सो रिलेटिव्स फ्रॉम योर फादर फैमिली. इज इट क्लियर? रिलेटिव ऑफ फादर फैमिली, relative of father family, that is known as paternal relatives, and relatives of mother family, they are known as maternal relatives. Okay, after that in this chapter I explained you resemblance, or you can say similarities in the family, in which way you are similar to your family member, or in other way you can also say you look like, how you look like. आप ऐसे भी कह सकते हो आप किसकी तरह दिखते हो, या तो आप अपने पापा की तरह दिखते होगे, या मम्मी की तरह, या दोनों की तरह. ठीक है, सिमिलरिटीज कलर में भी हो सकता है, आईज में हो सकता है, आपके ईयर्स में, फेस में, और even there is a resemblance, or you can say similarities in brother and sister also. ब्रदर और सिस्टर्स में भी सिमिलरिटी होती है बेटा, ठीक है, वो भी एक जैसे देखने में लगते हैं. और इफ टू किड्स दे आर आइडेंटिकल, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? ट्विंस बोलेंगे. ठीक है, सो दे बोथ ऑफ देम बर्थ एट द सेम टाइम, and if they are look same, then we say them as a identical twins. So, and after that I explain one more thing in this chapter, that is living together. Living together in a family is a fun. How? If you love and respect all members of the family, देयर शुड बी अ गुड कम्युनिकेशन बिटवीन द मेंबर्स. जैसे आप जिस भी फैमिली में हो, आप उस फैमिली में तभी खुश रह सकते हो जब आप अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट करोगे, तभी वो आपको लव करेंगे. लव और रिस्पेक्ट होना चाहिए फैमिली में बेटा. नेक्स्ट थिंग इज दैट गुड कम्युनिकेशन मीन्स हम जो भी फैमिली मेंबर्स हैं आपस में हमारी अच्छी बातचीत होनी चाहिए. ठीक है, ऐसा देखो ओल्ड टाइम में क्या होता था, बच्चे बहुत कम अपने पेरेंट्स से बात करते थे, स्पेशली फादर से. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए. हमें अपने सारी फैमिली मेंबर्स के संग हमारा गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, सबके संग हमारी अच्छी बात होनी चाहिए. ओके, सो इन दिस वे वी कैन टेक केयर ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स आल्सो, एंड वी लव एंड रिस्पेक्ट देम आल्सो. Is it clear? Now next thing जो मैंने बताया ट्विंस की, ट्विंस बच्चे जो होते हैं दे हैव मैनी हैबिट्स कॉमन. ठीक है, उनकी बहुत सी आदतें आपस में बहुत मिलती हैं. ठीक है, सो ये होता है आइडेंटिकल ट्विंस बच्चों में. ठीक है, फिर आफ्टर दैट अब थिंग्स टू रिमेंबर. थिंग्स टू रिमेंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द बुक. थिंग्स टू रिमेंबर बेटा आप पूरा चैप्टर पढ़ लो और उसके बाद थिंग्स टू रिमेंबर जो एक बॉक्स में दिया रहता है, प्लीज रीड दिस पॉइंट्स. दिस इज द कंप्लीट समरी ऑफ द चैप्टर. पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आप इन पॉइंट्स को हम लोग अक्सर इग्नोर करते हैं. हम सोचते हैं पूरा चैप्टर पढ़ा है, इसको क्या पढ़े अब थिंग्स टू रिमेंबर. बट नो स्टूडेंट, दिस इज अ कंप्लीट समरी ऑफ द चैप्टर. आफ्टर complete explanation of the chapter, please read these points 1 or 2 times, and if you are able to understand, अगर तुम्हें सारे ये पॉइंट्स समझ में आ रहे हैं, इसका मतलब तुम्हें इस पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया, सारे टॉपिक आपको आ गए. इसलिए बेटा डोंट इग्नोर दिस पॉइंट. इन योर बुक इट इज गिवन थिंग्स टू रिमेंबर. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिली, ज्वाइंट एंड न्यूक्लियर. देखो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है, जब टाइप्स ऑफ फैमिली पढ़ाई थी तो मैंने आपको क्या बताया था, टाइप्स ऑफ फैमिली इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, दैट इज अ ज्वाइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली. ज्वाइंट फैमिली इज अ लार्ज फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली इज अ स्मॉल फैमिली. इन प्रेजेंट टाइम आप मैक्सिमम देखोगे ज्वाइंट फैमिली ब्रेक होके किस पार्ट में चेंज हो गई है, मैंने ऑलरेडी ये एक्सप्लेन किया था, न्यूक्लियर फैमिली में.
because after education people are moving in those cities where they are getting the job. ठीक है, ओल्ड टाइम में हमारा मेन ऑक्यूपेशन मतलब काम धंधा हम क्या करते थे, तो ओल्ड टाइम में जॉइंट फैमिली इसलिए ज्यादा होती थी कि ओल्ड टाइम में हमारा मेन जो ऑक्यूपेशन होता था मतलब काम धंधा, जिससे कि हमें खाने को मिले, पैसा मिले, क्योंकि हमें पैसे की भी जरूरत है। सामान हम जाते हैं मार्केट में खरीदने तो हम किसी से बोलते हैं ये हमें दे दो, तो वो हमें दे देगा? नहीं दे देगा। वी हैव टू पे मनी फॉर डैट, वी हैव टू पे मनी फॉर डैट। सो इन ओल्ड टाइम मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज फार्मिंग। ज्यादा लोग क्या करते थे? फार्मिंग, या आप कल्टीवेशन भी कह सकते हो, खेती बाड़ी करते थे। बट नाउ द टाइम इज चेंज, इवन विलेज, इन द विलेजेस यू विल सी villages student, they are also doing study and getting a good job. And now what happened due to this? They settle in different city where they get the job. So in this manner joint family break into a nuclear family. So in present time you will see many nuclear families in which you having a father, mother and their children. And in the holidays we meet our relatives, we go to our village, there we meet our grandparents. And in special occasions like wedding, birthday celebration, in these types of special occasions also we meet our relatives. Okay, next point given in things to remember is that member of a family have similarities or resemblance to each other. ये देखो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, यू हु यू लुक लाइक, आप किसकी तरह देखने में लगते हो। तो व्हाट इज द मीनिंग, ये देखो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनमें आपस में सिमिलरिटी या रिसेम्बलेंस होता है। या तो आप अपने मम्मी की तरह लगोगे, या पापा की तरह लगोगे, या दोनों की तरह लगोगे। तो ये चीज होती है फैमिली में। थर्ड पॉइंट दिया है, ए जॉइंट फैमिली इज ए लार्ज फैमिली वाइल ए न्यूक्लियर फैमिली इज ए स्मॉल फैमिली। देखो ये बात मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखी है कि जॉइंट फैमिली इज ए लार्ज फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली इज अ स्मॉल फैमिली। सो देखो थिंग्स टू रिमेंबर में 3 पॉइंट्स दिए थे एंड वी डिस्कस ऑल दीज 3 पॉइंट्स। अब इन 3 पॉइंट्स की सारी बातें आपको पता है। न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, जॉइंट फैमिली क्या होती है, फैमिली के मेंबर्स में सिमिलरिटी रिसेम्बलेंस होता है, ठीक है, ये टॉपिक भी हमने कवर किया था। और जॉइंट फैमिली लार्ज होती है और न्यूक्लियर फैमिली स्मॉल होती है। बिकॉज दीज थिंग्स टू रिमेंबर बेटा, ये पूरे चैप्टर की एक स्मॉल समरी होती है। जैसे आप लोग हिंदी में नहीं पढ़ते हो, कोई स्टोरी मैम या इंग्लिश या हिंदी में मैम आपको कोई स्टोरी बताती हैं और बाद में लास्ट में आपसे पूछती हैं इस स्टोरी क्या क्या शिक्षक है, तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है इस स्टोरी से। तो हम बोलते हैं हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें बहुत पढ़ाई करनी चाहिए। इस तरह इंग्लिश और हिंदी में टीचर्स स्टोरीज डिलीवर करने के बाद आप ही से पूछते हैं कि इस स्टोरी से आपको क्या शिक्षा मिली, व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। तो हम एक नाम देते हैं। इसी तरह ईवीएस में जो थिंग्स टू रिमेंबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चैप्टर की कंप्लीट समरी है। ठीक, डोंट इग्नोर दिस पॉइंट। इन्हें पढ़ोगे और इनमें लिखी बातें अगर आपको सब आ गई हैं समझ में, इसका मतलब पूरा चैप्टर आपके समझ में आ गया है। अगर इनमें से कोई एक आध पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है, विदाउट एनी हेजिटेशन आप ऑनलाइन क्लासेस में मुझसे पूछ लोगे। क्लियर? सो थिंग्स टू रिमेंबर भी हमने कर लिया। नाउ टुडे we will start the book exercise and these are the today video the book exercise which we will solve in this video, that is from the new book, new edition book. Okay, in one video I have solved the book exercises of the old book, but you will in your classwork copy you will know book exercises you will complete in the book only. Listen it clearly. बुक की जो एक्सरसाइज है बेटा हमको सिर्फ बुक में ही लिखनी है, ठीक है। क्लासवर्क कॉपी में आप क्या करोगे, इन क्लासवर्क कॉपी यू विल राइट द क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर, ठीक है। क्लासवर्क कॉपी में बेटा आप क्वेश्चन आंसर लिखोगे चैप्टर के एंड यू विल ड्रॉ द डायग्राम।
these two things you will complete in your classwork copy. You will write question answer of the chapter, and another thing is you will draw the diagram मतलब वो जो फोटो बनाने के लिए देते हैं आप लोग को, ठीक है। तो ये दो काम आप करोगे क्लासवर्क कॉपी में। और जितनी भी बुक एक्सरसाइजेज है, जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन, सर्किल द ऑड वन आउट, ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे जो बुक की एक्सरसाइज है, यू विल कंप्लीट इन योर बुक ओनली। आई होप you are all are able to understand. Even if there is any confusion, you can ask me in the online EVS class. Okay, now let's start with the book exercise of this chapter, and this is book exercise of a new edition EVS book, not the old one. So fill in the blanks using correct option. First question is question number A. Fill in the blanks. Fill in the blanks using correct options. See, there is one question given, and for this one question there are 3 answers given to you. Okay, and you have to choose the right answer. Question number 1. Members of a family are not related by dash. So here options are birth, second option is adoption, and third option is money. Okay, again see the question on the board and understand, first of all understand the meaning of this question. See, in this question it is given members of a family are not related by. मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया था हाउ वी फॉर्म ए फैमिली ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर यूनाइटेड मीन्स आपस में जुड़े हुए हैं, वो लोग आपस में रिलेशन है उनके। तो ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर यूनाइटेड, कैसे फैमिली बनती है? बाय बर्थ, मैरिज और बाय एडॉप्शन। या तो आप उस फैमिली में आपकी बर्थ हुई मतलब आप पैदा हुए तो आप उस फैमिली के मेंबर हो गए। आपकी मम्मी किसी फैमिली में थी, आपके पापा से शादी हो गई तो उन्होंने आपके पापा की फैमिली को ज्वाइन कर लिया। तो ये कैसे हुआ? मैरिज करने से, शादी करने से। मान लो किसी फैमिली में कोई बच्चा नहीं है तो ऐसे में हम लोग कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, मतलब गोद ले लेते हैं, और गोद ले लेते हैं तो हम उसके पेरेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो अब वो जो बच्चा है वो हमारी फैमिली का मेंबर हो गया, तो इसको एडॉप्शन बोलते हैं। सो क्वेश्चन इज मेंबर ऑफ ए फैमिली आर नॉट रिलेटेड बाय। मेंबर ऑफ फैमिली किस चीज से रिलेटेड नहीं होते हैं? बर्थ से रिलेटेड होते हैं फैमिली के मेंबर। आंसर क्या होगा? यस। मेंबर ऑफ फैमिली आपस में रिलेटेड कैसे होते हैं? बाय बर्थ, ये तो राइट ऑप्शन है। बाय अडॉप्शन, यस दिस इज आल्सो राइट ऑप्शन है। लेकिन ये कह रहा है मेंबर ऑफ ए फैमिली आर नॉट रिलेटेड बाय,
क्या रीजन है जिससे फैमिली नहीं बनती? मनी। आप पैसे से फैमिली बना लोगे? किसी को भी पैसे देके झूठ के मम्मी पापा खरीद के ला सकते हो? झूठ के भाई बहन ला सकते हो? नहीं ला सकते। फैमिली बनती कैसे है? जब लोग आपस से बाई बर्थ से जुड़े हों या एडॉप्शन। लेकिन तुम सोचो कि हम मनी से किसी को भी अपना मम्मी पापा बना लें, कोई को भी अपना भाई बहन बना लें, अंकल आंटी ले आए, मनी से खरीद के हम दादा दादी ले आए, तो ऐसा हो सकता है बेटा? नहीं हो सकता। तो बोल रहा है मेंबर ऑफ फैमिली आर नॉट रिलेटेड बाई, तो क्या आंसर होगा? मनी। हम मनी से फैमिली नहीं बना सकते। ठीक है, इज इट क्लियर? सो टिक इसको कर लो, मनी इज द राइट आंसर। मेंबर ऑफ फैमिली आर नॉट रिलेटेड बाई मनी। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया होगा। हम पैसे से फैमिली नहीं बना सकते। ठीक है, फैमिली बाय बर्थ या तो हम लोग उस फैमिली में पैदा हो, या तो बाय मैरिज और या बाय एडॉप्शन, ऐसे फैमिली बनती है। मनी से नहीं कि किसी को भी खरीद के ले आए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव डन। नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज, अगर आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको सारे आंसर आ रहे होंगे। ए ज्वाइंट फैमिली, ए ज्वाइंट फैमिली is a joint family is a dash family. Now he want to know joint family क्या, किसको बोलते हैं हम लोग joint family? Now the options are A big, option B small, option C none. See, now let read the question once again. A joint family is a dash family. So मैंने ऑलरेडी आपको डेफिनेशन बता रखी थी। जैसे ऑप्शन नंबर बी लेते हैं, पहले बी से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए ज्वाइंट फैमिली इज ए स्मॉल फैमिली। नो, दिस इज नॉट राइट। स्मॉल फैमिली न्यूक्लियर फैमिली है, जिसमें आपके मदर होंगे, फादर एंड देयर चिल्ड्रन। ठीक है, स्मॉल फैमिली क्या होती है? न्यूक्लियर फैमिली होती है। इन दिस न्यूक्लियर फैमिली यू हैविंग योर फादर, मदर एंड देयर चिल्ड्रन। तो स्मॉल फैमिली वाला तो न्यूक्लियर हो गया, ये हो ही नहीं सकता। नन मतलब यहां बिग दिया, यहां स्मॉल दिया, नन नन मतलब इनमें से कोई भी नहीं है, तो ये भी रॉन्ग है। क्योंकि आपको पता है ए जॉइंट फैमिली इज अ बिग फैमिली, बिकॉज इसमें आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, अंकल आंट हो सकते हैं, उनके चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो ज्वाइंट फैमिली क्या होती है? लार्ज फैमिली होती है। नंबर ऑफ मेंबर्स आर मोर इन ज्वाइंट फैमिली। सो आंसर इज ज्वाइंट फैमिली इज अ बिग फैमिली। नोट डाउन दिस आंसर इन योर बुक। बेटा मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, बुक एक्सरसाइजेस कॉपी में नहीं करनी है। ठीक है, बुक एक्सरसाइज बुक में करनी है, कॉपी में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे एंड वी ड्रॉ डायग्राम ऑफ द चैप्टर। ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन 3, द चिल्ड्रन ऑफ CHILDREN, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के संग कभी एस नहीं लगता है, ये खुद ही प्लूरल होता है। ठीक है, सो चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन ऑफ अंकल एंड aunts are called dash. Option A twins,
ऑप्शन बी cousins, and option C none. So I have already explained you, if you have a joint family, so what happen in the joint family? Your grandparents, your parents, children, uncle aunt and their children. So uncle aunt के जो बच्चे होंगे उनकी क्या रिलेशन होगी आपसे? दे आर योर ब्रदर एंड सिस्टर, वो आपके ब्रदर सिस्टर हैं, यस, बट मदर इज नॉट सेम, दे आर नॉट सिबलिंग्स, इसलिए हम उन्हें क्या बोलेंगे? कजन्स बोलेंगे, ठीक है। मदर इज नॉट सेम, ठीक है, सो वो सिबलिंग्स नहीं है, तो हमारे ब्रदर सिस्टर तो फिर भी हुए ना बेटा वो, लेकिन कैसे ब्रदर सिस्टर हुए? कजन्स हुए, ठीक है, तो राइट आंसर कजन होगा। अब ट्विंस नहीं हो सकता, क्यों? ट्विंस मीन्स टू किड्स बर्थ एट द सेम टाइम, अगर दो बच्चे सेम टाइम पे पैदा होते हैं तो उनको ट्विंस बोलते हैं, तो ट्विंस राइट आंसर हो नहीं सकता। राइट आंसर क्या होगा? कजन्स। और नन मतलब कह रहा है कि ट्विंस भी रॉन्ग है, कजन भी रॉन्ग है, तो नन तो है नहीं, क्योंकि राइट आंसर कजन है। जो तुम्हारे अंकल आंट के चिल्ड्रन होंगे उनकी आपसे क्या रिलेशन होगी? दे आर देयर ब्रदर एंड सिस्टर, बट दे आर योर कजन्स। क्या रिलेशन होगी? वो आपके कजन्स होंगे। Is it clear? So note down this answer in your book. Now next question, question number 4. Family members generally dash each other. Option A, resemble. Option B, do not resemble. Option C, none. So firstly understand the question, student. See, family members generally dash each other. So मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते समय एक टॉपिक पढ़ाया था, रिसेम्बलेंस और यू कैन से सिमिलरिटीज इन द फैमिली। जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं उनमें आपस में क्या होती है? सिमिलरिटीज होती है कि नहीं होती है? व्हाट इज द आंसर? यस, यू ऑल आर राइट। फैमिली मेंबर्स resemble each other means they have some similarities. You whom you look like, whether your father, mother or sometime both. Is it clear? So this option number B is given, do not resemble. जो फैमिली के मेंबर होते हैं उसमें कोई सिमिलरिटी नहीं होती है, तो ये तो रॉन्ग आंसर है बेटा। फैमिली के मेंबर में तो सिमिलरिटी होती है। और जिस ऑप्शन नंबर सी क्या है? नन। कह रहा है रिसेम्बलेंस, सिमिलरिटी नहीं होती, नहीं सॉरी, रिसेम्बल मतलब ये कह रहा है कि सिमिलरिटी होती है। ये डू नॉट रिसेम्बल मतलब कोई सिमिलरिटी नहीं होती है, और नन मतलब ये दोनों ऑप्शन जो दिए हैं ए और बी, बोथ आर रॉन्ग। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द राइट ऑप्शन, रिसेम्बल, क्योंकि फैमिली के मेंबर में आपस में सिमिलरिटीज होती है ना बेटा। मैंने ये बात आपको बताई है चैप्टर में, टॉपिक जब पढ़ाया था, रिसेम्बलेंस और सिमिलरिटीज इन अ फैमिली मेंबर, ठीक है। सो फैमिली मेंबर जनरली डैश ईच अदर, आंसर होगा रिसेम्बल।
family members generally resemble each other. Okay, thank you students.